never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm आपके लिए एक छोटा सा नजराना। थैंक्स। आप लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो रिहर्सल शुरू करें। आइए। रुको, चलो। तुम भी ना ब्रिज, ये क्या तरीका हुआ? सबके सामने। सबके सामने क्या? हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ओह रियली? किसकी? मेरे गाने की। और किसकी? पर इस गाने पर कोई डांस नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपनी आवाज की प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना। और फिर ये रोज? ये तो आपको रोज मिलेगा, ना इनकार करो। दीपू, दीपू बेटा, तेरे पापा की दवाई का टाइम हो गया है, जरा दे आ तो। मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँ या इन फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करूँ? दीपू, फालतू का काम नहीं है ये, तेरे पापा की दवाई है। जाना मेरा राजा बेटा, 2 मिनट का तो काम है, दे देना। कल टेस्ट है मेरा माँ, आप ये काम को ढीली क्यों नहीं देते? सीधी सादी दवाई होती तो कह देती उससे। तुझे मालूम है इस दवाई का हिसाब किताब कुछ अलग है, कैसे देनी है सिर्फ तुझे ही पता है। जाना बेटा, दे आना, दवाई का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। ठीक है, रख दीजिए। अभी दे आना, टाइम हो गया है। हाँ हाँ माँ, दे आऊंगा। सुधा, सुधा, अरे सो रही थी क्या? सुनाई नहीं देता? मैं क्या? वो पापा की दवाई बना के देनी है। वो मुझे कुछ नोट्स कॉपी करके अपने दोस्त की किताब वापस करनी है।
तो तू पापा को दवाई बना के दे देना। लेकिन मैं कैसे? अरे इस बोतल पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पढ़ना आता है ना? आता है, बस उसी हिसाब से दवाई बना के देते ना। ठीक है, ये लो पकड़ो। देख कोई गड़बड़ मत करना, ढीली। सरकारी आंकड़ों में आधी हुई महंगाई, लेकिन दाल चावल के दाम जा रहे हैं ऊपर। मुंबई के ओबराय ट्राइडेंट में जमकर सोए आतंकवादी, जबकि देश ने किया रत जगह। मालेगांव धमाके तो थे महज नमूना, मुतालिक का बयान। पूछताछ के लिए मुंबई एटीएस की टीम मैंगलोर पहुंची। चुनाव की हवा शुरू होते ही कांग्रेस ने सुर बदला। क्या हुआ? यूपीए के साथ ही अलग करेंगे गठबंधन। क्या हुआ? दवा कैसे गिरा दी बेटा? ये क्या कर दिया इसने? पापा की दवाई की बोतल तोड़ दी। अरे एक बात ठीक नहीं होता तुझसे। लेकिन मैंने तो तुझसे कहा था ना। क्या हो गया? अरे पढ़ाई कर रहा था मैं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं। मैंने इसको जाके बोतल दी कि जाके दिया, और ये क्या कर दिया तूने? आज तू पागल तो नहीं है? कोई बात नहीं बेटा। अरे पापा क्या कोई बात नहीं? जानबूझकर तो नहीं गिराया सुधा ने, हो जाता है अब। अरे ऐसे कैसे हो जाता है पापा? अरे क्या साफ कर रही है तू? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। क्या सोचती थी दिन भर तू? ये क्या हो रहा है? सुधी क्या हुआ? दीदी मैं बताता हूँ आपको, आप मुझसे पूछो ना, इससे क्या पूछ रही हो? मैंने बोला कि जाके पापा को दवाई दिया, और देखिए क्या किया इसने। अरे मुझे मालूम होता ना पापा कि आपकी दवाई के साथ ये ऐसी लापरवाही करेगी तो मैं कभी नहीं देता। सारे काम छोड़ के मैं ये दवाई दे देता पापा को। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? अरे मैं फेल हो जाऊंगा, फेल ही हो जाऊंगा, तैयारी नहीं होगी, और क्या? कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। अरे क्यों बस करूं दीदी, क्यों बस करूं मैं? और आप इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपसे पढ़ाई या शर्ट के लिए पैसे मांगो तो आप 4 बार पूछ के देती हैं। आप ही ने सिखाया ना हमको, हम सबको, कि इस घर के अंदर 10-10 रुपए के बहुत मायने हैं। ये बोतल 300 रुपए की थी, कहां से लाएंगे हम? कहां से लाएंगे माँ? बताइए ना पापा, कहां से लाएंगे बोतल? बंद करते कभी बार। कितने काम रुके पड़े हैं, कितने सारे बिल्स पेंडिंग है। इसमें मैं नई ड्रेस नहीं ले सकती थी। ये बोतल 300 रुपए की, ये बोतल 300 रुपए कहां से लाएंगे हम? कहां से लाएंगे? महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब चीजों के दाम बढ़ गए। 300-400 रुपए हो जाते तो अच्छा। पढ़ाई या शर्ट के लिए पैसे मांगो तो आप 4 बार पूछ के देती हैं। 4 बार पूछ। 300-400 का खर्चा आएगा बहन जी। आज रहने दीजिए, अगली बार करा दूंगी। वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी एक जॉब कर लूं। कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई तो पूरी कर ले। मिस दीप्ति आइए।
जॉब्स के तो ऑफर बहुत हैं, बट नॉट माई टाइप, यू नो। करेक्ट, तुम्हारी पर्सनालिटी को भी तो सूट होना चाहिए। क्या की डाले है ना, आजकल तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं जॉब के लिए, सिलेक्शन तो होती नहीं, फिर भी आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लुक एट, व्हाट यू से, क्या इस बहन जी का सिलेक्शन होगा? अरे हाँ, दीदी आपको आने में देर क्यों हो गई? ओह सॉरी, आप सब मेरी राह देख रहे थे? चॉकलेट चाहिए, नहीं, आज नहीं लाई, लेकिन कल जरूर लाऊंगी पक्का। हाँ अरे छोटे उस्ताद गुस्से में क्यों हैं? बंटी बेटा, क्या हुआ? सबसे अलग क्यों बैठे हो, वो भी ऐसे मुंह फुलाकर? दीदी से नाराज हो? तो फिर क्या हुआ इसे? बंटी की किचन वाले भैया से लड़ाई हो गई है। भोला राम से? जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी। इतने नखरे जो है तुम्हारे खाने में, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। दीदी इसको सब अच्छा लगा था, इसके मनपसंद आलू के सैंडविच भी बनाए थे। तो फिर लड़ाई किस बात पे हुई? बंटी को एक और सैंडविच चाहिए था, लेकिन भोला राम ने मना कर दिया। मना कर दिया? ये क्या बात हुई? अभी जाकर बात करती हूँ भोला राम से। भोला राम जी दीदी। ये क्या तरीका हुआ? बच्चों को खाने की चीज के लिए नहीं टोकते, क्यों बंटी को मना किया? अब हमें कौन सा अच्छा लगता है दीदी, पर क्या करें, मजबूरी है। और महंगाई, ये भी तो ससुरी 1.5 गुना बढ़ गई है ना, और पैसे उतने के उतने ही आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले आलू सस्ते थे तो ढेर सारा आलू ला कर रख दिया, और 6 दिन से वही पका के खिला रहे हैं। अब ये भी तो किसी ना किसी दिन खत्म होंगे ना दीदी। सही कह रहे हो, सॉरी, तुम्हारी बात बिना सुने ही मैंने तुम्हें डांट दिया। ठीक है, तुम जाओ। कहीं से कटौती करके किचन का बजट बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों के हेल्थ का सवाल है, समझौता नहीं कर सकते। मैं समझता हूं, लेकिन हाथ खींचकर कटौती करें भी तो कितना होगा? मुश्किल है, सब तो तुम्हारे सामने है। अंकल, कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर कॉर्पोरेट से मदद लेनी होगी। बिना कांटेक्ट के वो भी तो मुश्किल है। मेरा एक भतीजा है पंकज, उससे बात करके देखता हूं। उसकी इंडस्ट्री है यहां, आई एम श्योर उससे कुछ मदद मिल सकती है। बात की बाद में देखेंगे। एक्सक्यूज मी, ब्रिज, तुमने 500 का दूसरा नोट कब रख दिया मेरे बैग में? मैंने नहीं तो। बनो मत, मुझे सब पता है। क्यों इतना कर रहे हो? ज्योति, जब सब पता है तो बहस क्यों है? मैंने तुम्हें सुषमा से बात करते हुए सुन लिया था। लेकिन मैं मैनेज कर लेती ना। ज्योति, अरे बस भी करो यार। अरे कितनी बार कहा है तुमसे कि अरे उधार समझ लो ना। डोंट वरी, मैं वसूल कर लूंगा। ओके? अब तुम मेरी बात कहाँ मानोगे? एग्जैक्टली। अब तुम परेशान होना छोड़ो और जाके कह दो।
कह दूं? क्या कह दूं? और किससे? अरे यार, अपने घर में थोड़ी फीलिंग तो करो मेरे लिए। ब्रिज, नहीं सीरियसली यार, कम से कम उन्हें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर तो कर दो। सबके मन में भाई ये बात तो रहे कि कोई है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा है। चलो, रखता हूं मैं। ब्रिज, थैंक्स। अरे यार, 1000 रुपए के लिए 1000 बार थैंक्स बोलोगी क्या? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। तो फिर? मुझे समझने और मेरा साथ देने के लिए। पायल, हाय, कैसा रहा इंटरव्यू? परफेक्ट। सिलेक्शन तो 100% मेरा ही होने वाला है। लेट्स गो। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम मेरे घर के पास रहती हो ना? वो मेरी खिड़की से आपका घर दिखता है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो देखो, ये जॉब मार्केटिंग के लिए है और तुम्हारी पर्सनालिटी इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। डोंट माइंड, पर ये सच है। मुझे लगता है कि डेस्क जॉब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। चले? सुधा, अरे सुधा है क्या यहाँ कोई? चलिए। आपका नाम? सर, सुधा। योर सर्टिफिकेट्स प्लीज। बैठिए। यस मिस सुधा, आपकी स्कूलिंग तो प्रॉपर्ली हुई है, बट ग्रेजुएशन आपने प्राइवेटली किया हुआ है। क्यों? जबकि 12th में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। एनीवे, एक और बात मैंने नोटिस की है, पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है? डांस, म्यूजिक, कॉलेज इलेक्शंस। बाय द वे, आपको क्या लगता है, अगर ये जॉब आपको मिल जाए तो क्या एफिशिएंटली कर पाएंगी? जी सर, मैं पूरी मेहनत और लगन से करूंगी सर, पूरी ऑनेस्टी से। और आपके कॉलेज का क्या होगा? पढ़ाई कंप्लीट करनी है ना? यस सर। आपको पढ़ाई भी करनी है और जॉब भी करनी है, दोनों एक साथ कैसे मैनेज करेंगे आप? सर, मैं काम के बाद पढ़ाई कर लूंगी। मगर एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, उन्हें पता नहीं है। और अगर किसी दिन काम से लेट आई आप, तो घर वालों को क्या जवाब देंगी? सर, मैं हर रोज लाइब्रेरी जाती हूँ, तो वही कह दूंगी। लेकिन ये तो झूठ हुआ ना मिस सुधा। सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है मिस सुधा? शुरुआत ही झूठ से कर रही हैं आप। आप जा सकती हैं। सर प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए। बहुत ही टफ कंपटीशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में आप जॉब कर पाएंगे। प्रोडक्ट सेल करने से पहले पर्सनालिटी सेल करनी पड़ती है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। और कॉन्फिडेंस के बगैर तो प्राइमरी स्कूल में टीचर का जॉब भी नहीं कर पाओगी आप। आप जा सकती हैं। सर, आप जा सकती हैं।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।